Okay, Siddharth. So let us first discuss your case, your answer which you have written, Sure, sir. and how many you have sent, Siddharth? So I have sent two questions, answer for two questions. Okay, you have sent two questions up. Actually, the first one which I sent, that was I have wrote it in iPad. So but again, sir told me to write it on a paper and send, so I sent just now. That one. The paper one might not be that legitimate because clicking picture and making it in PDF. But the one that I sent before was Okay, so is it visible to all? Yeah. yes, sir. Okay, Okay, Siddharth. So this is a question, right? Yes, sir. so this is 6 marks question. Yes, sir. Okay, so you have given data. Okay, so after that, you write formula. Okay. So here, Siddharth, what I want is you have written a chip thickness ratio, Yes, T sir. by TC. What do you mean by T and what do you mean by TC? What do you mean by LC? What do you mean by L? What do you mean by VC? What do you mean by V? These symbols. Okay, sir. So the point is whenever you write a formula and you write something in that, like you go on the top, if you see DI is the initial diameter of the bar, DF is Yes, the sir. final after cut final diameter of the bar, Yes, and I sir. think you have written LC is the mean length of the cut chip, right? Yes, sir. But when you go to chip thickness ratio, the way you define chip Yes, sir. thickness ratio is equal to T by TC is equal to what is T, what is TC. That is very important. Yes, What sir. is LC, what is L, what is VC, what is V? That would have been very good. And what is phi and what is alpha? Now you Okay, are sir. presuming that he knows phi, he know alpha, but every book has a different nomenclature. You know that. Patient. Yes, sure, sure, sir. Yes, sir. Yeah. So wherever possible, whenever you are defining chip thickness ratio, and this question is of chip thickness ratio, in my Yes, sir. opinion, you have to define what is chip thickness ratio. When you write T over TC is equal to numerator may tell what is T, Okay. denominator may write what is TC. Similarly, it Should I, it is sir, written write this the names it before, like in the given data, or after defining T I'm and D? telling you, like chip thickness ratio, R is equal to T by TC is equal to what is T, what is TC. Okay. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको लिख दो वैसे इज Hmm. इक्वल टू एल सी बाई एल तो वैसे भी लिख दो आप राइट Okay, किसी भी okay. तरीके से बट आई वांट इट टू नो इट नाउ या लेंथ फिर ऑफ अनकट या चिप फिर सर थिक साइड में राइट साइड में एक बॉक्स बना के टी क्या है, या जो जो अननोन पैरामीटर है उसको मैं यस लिख। यस एनीथिंग जी। एनीथिंग बट आई वांट टू नो व्हाट इज दिस एक्चुअली मेरे को नहीं ओके। पता फाई क्या है मेरे को ये भी नहीं पता अल्फा क्या है बिकॉज जी, श्योर। नोमेनक्लेचर अलग होता है ना हर जगह पे श्योर, श्योर, सर, श्योर, श्योर। सो अच्छा, देन ये हाँ ये फॉर्मूला जैसे लिखा है ना, R इज इक्वल टू टी बाई टी सी दिस दिस दिस, करेक्ट? तो इसी के जी, सर। नीचे लिखो वेयर टी इज दिस, टी सी इज दिस, एल सी इज दिस, एल इज दिस, वी सी इज दिस, वो हाँ। सारे डिफाइन कर दो, करेक्ट? श्योर, सर, तो श्योर, फिर सर। वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक नीड नॉट टू राइट वी सी बाई वी, दिस इज हाँ, मतलब ये एक्स्ट्रा, रिडंडेंट, बट सर ऐसे मैंने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ही लिख लिया, मतलब। है ना? तो ये एक्स्ट्रा नहीं नहीं कैरेक्टर अभी नहीं लिखना है, हाँ जी, ठीक है? बहुत सही बता रहे हैं सर बिकॉज जो भी जी। सुपरफ्लुअस चीज डाल दोगे जो एडिशनल डाल दोगे हाँ, हाँ। उससे वो इरिटेट होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल, कहाँ थी बिल्कुल, सर। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वीसीबी यूज नहीं कर रहे हो तुम तो उसको हटा दो सर और इवन यहाँ पे ये वाला भी नहीं ये चाहिए, साइन यहाँ पे फाई वाला। इवन एल सी बाई एल जो आपने लिखा ना डायरेक्ट, जी, सर। सो डायरेक्ट इसको लिखने की बजाय इसको लिखना पड़ेगा कि सिंस इन मेटल रिमूवल बिफोर एंड आफ्टर कटिंग इज रिमेन सेम। ये हमारा हम्म। अजम्पशंस होता है कि वॉल्यूम जी, बिफोर कट एंड आफ्टर कट सेम होता है। जी, सर। तो अगर हम वहां से वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे देन यू विल गेट दिस रिलेशन, करेक्ट? एल सी बाई एल, क्योंकि वेट सर करेक्ट? कांस्टेंट रहता है, और उस तरीके से, राइट। हाँ, तो इनिशियल इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा आपका? चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस इनटू लेंथ ऑफ अनकट चिप थिकनेस जी, इनटू विड्थ, जी, करेक्ट? जी। एंड आफ्टर कट क्या होगा? chip thickness into length of the chip into width, final width. हम्म, And since here we assume this is plane strain cutting, हम्म। correct? Therefore, Yes, the V1 is equal to V2. And if हम्म। V1 is equal to V2, then you get this relation T by TC is equal to LC by SC. श्योर। करेक्ट? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है ये, आप डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं। ओके, सर। इज इट राइट? यस, डिफिनेशन सर, के यस, सर। अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चिप थिकनेस रेशियो इज टी बाई टी सी ओनली। यस, सर। It is the ratio of uncut chip thickness over cut chip thickness. हम्म, Correct? This is the definition. But हम्म। definition में कहीं LC by L नहीं आता है. We derive this formula. यस, सर। Correct? इक्वेटिंग द वॉल्यूम्स। Yes. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे नोट लिखो
चाहो तो आप लिख लो साथ में, नहीं भूल जाओगे। जी जी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन मेटल कटिंग द वॉल्यूम बिफोर कट एंड आफ्टर कट इज रिमेन सेम, देयरफॉर वी इनिशियल No, और sir, I वी, think this recording will be provided to him so he can do it later on. हाँ ये Not a भी है, problem. वहां से भी आप ले सकते हो, करेक्ट करेक्ट। यस सो सर वी इज इक्वल V1 इज इक्वल टू V2, और यहाँ पे डिफाइन करते हो V1 इज इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज वॉल्यूम आफ्टर कट, करेक्ट। सो यस सर आफ्टर दैट यू राइट T1 वो सॉरी T इंटू, या यहाँ पे T1 L1 T2 ऐसा लिखो, T1 L1 V1 इक्वल टू T2 L2 B2, ओके सर करेक्ट। यस सर वेयर T1 T2 T3 डिफाइन कर दो, T1 V1 L1 आर द uncut chip parameters, ओके that is length, thickness and width, and similarly T2 T3 sorry T2 L2 and B2, correct। and यस from वहां लिखने के बाद फिर से लिखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट कि since here we assume this is a plane strain cutting, therefore B1 is equal to B2, यस सर correct। और जब B1 B2 हो गया then you will get T1 by T2 is equal to L2 by L1, ओके सर करेक्ट। इतना कुछ लिखने के बाद आप फाइनली आप पहुंच सकते हैं यहाँ पे। श्योर Okay, नीचे चलिए सर थोड़ा, I think we go down. हम्म ट्राई करना कि सो कहीं क्रिस क्रॉस ना हो, रबिंग ना हो. यस सर and okay, so next correct, R is also right to find the shear angle, yes, No, tan you are phi is writing equal to shear angle 3, here. It should have been written shear angle, phi यस is सर shear angle, right? यस सर and और इसका बेस्ट तरीका होता है कि first you write given that यस and सर after write find to, and after that you write the formula used, ओके ओके सर करेक्ट, और वहीं पे डिफाइन कर दो सारी चीजें, और श्योर वहां सर पे नंबर दे दो, दिस फॉर्मूला इज नंबर 1, दिस फॉर्मूला इज नंबर 2, और अगर वहां पे कुछ अजम्पशंस है उनके रिस्पेक्ट में तो वो अजम्पशंस भी मेंशन करो वहां पे, श्योर करेक्ट। अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा है और वो फॉर्मूला के बैकग्राउंड में कोई अजम्पशंस हम यूज करते हैं तो वो भी वहां मेंशन करो, देन मूव करो सोल्यूशन पे, तो ये और फिर मतलब वहां पे जैसे लिखोगे बुक्स बुक्स वगैरह में ऐसे लिखते हैं जैसे ऑथर्स वैसे टाइप के है ना, वो स्टार्टिंग में हम्म, डिफाइन कर लेते हैं जी बिल्कुल सर है ना। तो वो जब आंसर शीट कोई रीड करेगा ना तो उसको शुरू से ही स्टोरी पता चलेगी कि क्या श्योर करना है, श्योर श्योर करेक्ट। यस सर ओके, आफ्टर What is दैट what is द alpha? आंसर, What is alpha? सर द रेक एंगल सर रेक एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट? हाँ वो दिया हुआ था हाँ गिवन हाँ तो ये सारा मेंशन है रेक उसमें एंगल भी, है, वो सारे एंगल वगैरह मेंशन करो वहां ऊपर टॉप पे. श्योर यहाँ पे श्योर भी आपने लिखा नहीं सर मैं डेटा, मेंशन लाइक लिखते हैं the initial diameter of the bar is this and final diameter of the bar is this, correct, rank angle is this, correct। ये सारे यस मेंशन सर करना पड़ेगा, entire information whatever given in the question you should write in the given section, given that these informations are given. After that you also write find to what you need to यस find, correct, यस and with suitable unit मिस मत करना। कई बार क्या होता है जब हम आंसर लिखते हैं तो हम एंड में मिस कर देते हैं कि यस यूनिट क्या थी उसके, करेक्ट। तो वहीं पे मेंशन कर दो कि ये क्वांटिटी को पता करना विद दिस यूनिट, श्योर यस करेक्ट। यस सर तो ये कुछ माइनर करेक्शंस करोगे तो डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, देन यू विल गेट फुल मार्क्स, करेक्ट। यस सर एंड द आंसर इज राइट, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, योर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली राइट। यस सो एनीथिंग एल्स सर? नाउ अगर ये आंसर बिल्कुल सही है तो 6 में से तुम्हें वो 5 नंबर दे रहा है, 5.5 दे रहा है या 6 दे रहा है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि तुम सिद्धार्थ कितना अच्छा लिखे हो ये चीजें सारी. जी मतलब सर न्यूमेरिकल है, बिकॉज ये न्यूमेरिकल है, थ्योरी नहीं है इसमें, तो मेरे को लगता है 1 नंबर से ज्यादा काटेगा ये सारा जो तुमने गलती किया है. लेकिन 1 नंबर एक एक करके 6 नंबर में से अगर 0.5 मार्क्स भी बढ़ेगा तुम्हारा, अगर 6 में से बिल्कुल 0.5 सर मार्क्स भी बढ़ेगा तो तुम अंडरस्टैंड करो कि 300 में से कितना बढ़ेगा. जी दैट इज सर हाउ वी हैव टू कैलकुलेट, सो तो इट और एक मेक्स द डिफरेंस. ये होगा कि सर एक इम्प्रेशन भी बनेगा उनके ऊपर एक पॉजिटिव हाँ, वो इंप्रेशन बनेगा जो थ्योरी में तुम्हें हेल्प करेगा. अगर जी उसने इंप्रेशन एग्जैक्टली बनानी कि लड़का ठीक है, जी मतलब लड़का स्टूडियस, और वो पेपर देख के पता लगाता है कि लड़का कैसा है, वो मेटिकुलस है कैसा है. तो कई बार जब गलत क्वेश्चन भी होगा ना तुम्हारा, मतलब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उसमें 2 जी नंबर सर ज्यादा मिल जाएंगे तुम्हें उसमें, वो होता है. एग्जैक्टली सर यस सर हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सर. Okay, so next question. So schematically, the merchant force circle in orthogonal cutting, derive the equations for shear and friction force in terms of the material properties and cutting parameters, I think. प्रोसेस पर Cut, हाँ okay, cutting process parameters. Give in details the assumptions made and while arriving at the final equation. Correct?
Yes, sir. Okay, so first you मैं define सिद्धार्थ what एक is चीज merchant बताऊंगा, circle, correct? जैसे तुमने पूरा लाइन लिख दिया ना, assumptions फॉर मर्चेंट सर्कल डायग्राम आर एज फॉलोज, Yes, उसमें तुम sir. हेडिंग में लिखना assumptions बड़ा सा, Okay. Okay, sir. हेडिंग लिखा assumptions, उसके नीचे लिखा फॉलोइंग आर द assumptions टू डिराइव मर्चेंट सर्कल डायग्राम, टू ड्रॉ मर्चेंट सर्कल डायग्राम। आई थिंक वो assumption हेडिंग और उसके नीचे एक लाइन, फिर एक दो Yes, तीन sir. चार करके आपने assumptions डाल दी, राइट? Sure, sir. ओके। और यहाँ पे थोड़ा मर्चेंट सर्कल को आप डिफाइन भी कर सकते हो कि व्हाट इज मर्चेंट सर्कल डायग्राम, Okay. करेक्ट? Since ये एंड 14 आफ्टर मार्क्स का है दैट, सर, इसलिए राइट। आफ्टर दैट, क्योंकि ये 14 मार्क्स का है, एक एक जी सर। पॉइंट यहाँ पे लिख, हर एक वर्ड्स को डिफाइन करना होगा जो भी लिखा है, करेक्ट? सो फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज मर्चेंट सर्कल डायग्राम, एंड आफ्टर दैट you write what are the assumptions used while drawing merchant circle diagram, correct? So और यहाँ पे आपने 8 assumptions लिखे हैं, जी सर। है ना? क्या है? द कटिंग टूल मस्ट बी शार्प, देयर इज नो नो कांटेक्ट बिटवीन द कटिंग टूल एंड द, क्लियरेंस एज। ये 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 आपका assumptions नहीं है, इसको इरेज कर देना। ओके द सर। चिप फॉर्मेशन इज इन continuous form without built up edge, material is rigid and perfect plastic, material is rigid and perfect plastic, ये and perfect plastic, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड हो गया ना, ओके सर। है ना? ये आपने assumptions सही उठाई हैं सिद्धार्थ, कहाँ से उठाई हैं assumptions? मटेरियल इज होमोजेनियस कटिंग सर एक्चुअली हर जगह ऑर्थोगोनल। अलग अलग थोड़ी सी दी हुई है, कहीं पे 3-4 दी है, कहीं पे ज्यादा कुछ दिया है, तो वही से थोड़ा सा। आप मेरा नोट्स देखना, श्योर एग्जैक्ट सर। जो assumptions यूज होते हैं वो लिखे हुए उसमें, ठीक है ना? श्योर सर। है ना? ये ऑब्वियसली करेक्ट है, वी हियर वी अज्यूम द कटिंग इज ऑर्थोगोनल, द कटिंग टूल शुड बी शार्प, परफेक्टली शार्प, यस correct? सर। And the shear plane is considered as shear zone. यस सर। Minimum, and this theory is based on minimum energy principle. यस सर। Correct? तो टोटल वहां पे कितने मैंने, assumption लिखना है सर? हाँ, टोटल वाला। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 assumptions है, इससे ज्यादा नहीं है। ओके सर। तो वो आप देख लेना, रेफर कर लेना, उसमें मैंने यस अगर सर। एग्जैक्टली अगर सिद्धार्थ एग्जैक्ट तुम लिखे ज्यादा हैं। लिख दोगे ना तो वो नंबर काट लेगा तुम्हारा। ओके सर। अगर तुमने कोई ऐसी चीज लिख दी जो ज्यादा लिख दी और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं यस है, सर। वो फेकिंग होता है, वो तुम्हें पर्सनैलिटी पता लगाएगा ज्यादा लिख रहा है ये, हम्म। और उसका इम्पैक्ट पूरे क्वेश्चंस पे पड़ेगा। यस सर। और ये बुरा बहुत तो नहीं मानना। एब्सोल्यूट होता है, पता है, यहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। यस सर। हम्म। जब देखो, प्रिंसिपल है, लॉ है, assumptions है, इनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये एब्सोल्यूट चीजें होती है, जो है वही लिखना है, यस सर। करेक्ट है? यस सर। किसी किसी के बारे में जस्टिफिकेशन अगर पूछ रहा है, कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पे आपके थॉट्स देने हैं, तो वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। यस सर। लेकिन जब आप प्रिंसिपल लिखोगे या कोई रूल्स लिखोगे या कोई लॉ लिखोगे या चाहे आप assumptions लिखोगे, ये एकदम परफेक्टली रिजिड होना चाहिए, जो है सो है, दैट्स इट, यस सर। शायद आपको नहीं सोचना है, श्योर। ठीक है? ओके, नेक्स्ट, दिस इज मर्चेंट सर्कल डायग्राम। तो मर्चेंट सर्कल डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, अच्छा। करेक्ट? ओके सर। आपने देखा होगा, और यहाँ पे आपने लिखा नहीं है कि जो फोर्सेस आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हो, तो whether नीचे they are लिख देते acting हैं। on the chips or they are acting on ओके। the tool, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस, हर बुक में आपको फिगर अलग मिलेगा, तो वहाँ पर यस। रेफरेंस होता है कि whether we represent these forces on chip or whether these forces acting on tool, करेक्ट? ओके सर। तो यहाँ पे वो रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा। एंड अगर आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर, जैसे घोषण वाली बुक है यस ना, सर। या पिन राव, ये स्टैंडर्ड बुक है, इनमें जो लिखा है वो आप सही सच मान सकते हो, और वही आपको एज ए रेफरेंस लेके चेक करें कॉपी, तो वहां पे स्पेस लिखा रहता है ना, यस सर। कि दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द चिप, करेक्ट? यस और सर। वहां पे चिप को भी वहां पे एक सेगमेंट एज्यूम करके, रिजिड सेगमेंट एज्यूम करके फिर स्टडी किया था। तो ओके। प्रॉपर वो पहले लोड डायग्राम बनाओ एंड देन यू ड्रॉ दिस मर्चेंट सर्कल डायग्राम, करेक्ट? ओके सर। बाकी डायग्राम सही है, बट साइन आपका, साइन भी सही है, लेकिन अजम्पशंस नहीं लिखा कि किस पे फोर्स लग रहा है, तो डायग्राम क्या सर, अगर पेंसिल से बनाना पड़ेगा मतलब एग्जाम में? देखिए, अगर पेन आपको से लगता बना, है कि ये आपका रब करना पड़ेगा, आपको रबिंग करना है, यस तो सर। आप उसको पेंसिल से बनाएं। और खासकर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हाथ से मुश्किल होता है, तो जैसे अगर आपके पास कॉइन पड़ा है और कॉइन से आप जी पेंसिल सर। यूज करते हैं तो सर्कल बनता है काफी अच्छा। यस सर। अगर आपको लगता है कि परफेक्ट सर्कल बनाना है जो हाथ से नहीं बना सकते, तो पेंसिल यूज कर सकते हैं। बट कॉइन कॉइन अगर आपके पास है तो आप पेन से भी बना सकते हैं। तो यस सर। वो तभी यूज करना है अगर आपको रब करने की रिक्वायरमेंट है। अगर रब करने की रिक्वायरमेंट नहीं तो काला पेन से आप बना सकते हैं डायग्राम बहुत अच्छा।
यस सर, क्योंकि सर एग्जाम में तो थोड़ा हड़बड़ी होगा ना, तो उसमें शायद फ्री हैंड इतना सही तरीके से इफेक्टिव ना हो, तो वो आंसर को शायद बिगाड़ सके। तो वही अभी तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में किया, बिकॉज मेरे को मतलब वो रूल पेपर में लिखना था, तो इसीलिए, वरना नेक्स्ट टाइम पेंसिल वगैरह से ट्राई करूंगा सर। और तो ये थोड़ा रेफरेंस देखना, क्योंकि अगर मैं बोलूं विथ रेफरेंस टू मी, है ना, जो मैं जो यस सर। पढ़ाता हूँ उसके यस हिसाब सर। से रॉन्ग, इसके हिसाब से आपका एफएस का डायरेक्शन रॉन्ग है, एफसी का डायरेक्शन रॉन्ग है, एफटी का डायरेक्शन रॉन्ग है, एफएन का ओके। डायरेक्शन रॉन्ग है। लेकिन ओके। एक्चुअली ये रॉन्ग नहीं है, बिकॉज आई नो कि रेफरेंसेस अलग है, यस सर। और डिफरेंट रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये भी डायग्राम सही है, हम्म। क्योंकि मुझे वो दोनों रेफरेंसेस पता है, ठीक है ना। लेकिन यस सर। अगर जो चेक कर रहा है, अगर उसने बोला कि नहीं मैं तो यही मानूंगा, तो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रेफरेंस लिख दिया तो फिर चाहे वो उस रेफरेंस को फॉलो करे या ना करे, उनको आंसर सही मानना ही पड़ेगा। ओके सर। करेक्ट है, तो यहाँ पे यस। रेफरेंस लिखना कि किस पे फोर्स आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो। यस ओके, सर। सो आफ्टर दैट यहाँ पे डिफाइन कर दिया कटिंग फोर्स वगैरह क्या है, ठीक है। एनालाइज यूजिंग डायनोमीटर आफ्टर अरेंज the above mentioned cutting force and thrust force are analyzed using dynamometer. After analyzing these forces, they are plotted under a suitable scale. Force R is a resultant of cutting force and thrust force Ft. The frictional force F. आप चाहे यहाँ पे आप थोड़ा सा कोशिश किए हो कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया गया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, करेक्ट। यस। यस सर। तो ये एक्सप्लेनेशन चलो कोशिश ठीक है, लेकिन आपने अगर फोर्स डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है तो ये कोशिश यस बेकार सर। हो जाएगी, ओके क्योंकि सर। ये कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। यस सर। ठीक है, are acting against the cutting force. The frictional force and the force normal force are acting against the cutting tool, कूल। which yes, which is mutually perpendicular to each other. मेरे को Okay, लगता नहीं then for परपेंडिकुलर का वो सिंबल होता है सिद्धार्थ। परपेंडिकुलर वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। आई डोंट नो अच्छा, वेदर दैट हाँ, सिंबल। ऑब्लिक सर। यस सर। यस सर। हम्म, ऐसा कोई सिंबल यूज मत करो जो नहीं होता। श्योर सर। हम्म, then ns sin phi fs cos phi। अच्छा, आपने इसको यहाँ से डिफाइन कर दिया। यस। वैसे ये एनएस एनएस आपने किसको लिया, ये अच्छा इसको लिया, अच्छा। ओके यस ठीक सर। है। ठीक है, ये सारे फोर्स लिख दिए। नाउ लेट्स एक्सप्रेस फोर्सेस। क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड कटिंग प्रोसेस पैरामीटर। तो बेस्ट है कि सबसे पहले एफएस को डिफाइन कर दो, करेक्ट। मटेरियल ओके। प्रॉपर्टी जब भी आप लिखते हो तो मटेरियल यस। की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी काम आती है, वह शियर स्ट्रेंथ। यस सर। और शियर स्ट्रेंथ से आपको मिल जाएगा शियर फोर्स। और शियर फोर्स क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू टाउ एस इंटू शियर एरिया। यस। यस सर। करेक्ट है, जो कि यस। बी इंटू टी वन ओवर साइन फाइव। तो यस। जो शियर एरिया जो आप बी और टी लोगे तो कटिंग पैरामीटर्स हैं, ओके। ठीक है। और जो टाउ एच है वो शियर स्ट्रेंथ है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो वहां से आपको सबसे पहले एफ एस मिलेगा। एंड ओके। वंस यू गेट एफ एस, देन बाय यूजिंग मर्चेंट सर्कल फर्स्ट यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट। ओके। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, यहाँ से अगर लिखोगे तो एफ एस इज इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा। हम्म। देखो यहाँ पे अल्फा इज योर टूल ज्योमेट्री यस सर। पैरामीटर, एंड बीटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से मिल जाएगा। दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यस एंड सर। फाई इज अ शियर एंगल, करेक्ट। यस सर। और यस सर। शियर एंगल आप यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन प्रोसेस पैरामीटर्स, ओके। correct. So once you get phi, alpha, and beta, then you just write Fs is equal to R cos phi plus beta minus alpha. Then from this you get R, and once you get R, then from the merchant circle you can define each and every force, ओके। correct. तो या यस। तो फिर एफ एस एंड एफ टी से आप आर को डिफाइन कर दो कि आर इज नथिंग बट दिस स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, प्लीज सर। यस सर। करेक्ट। यस सर। क्योंकि ये आर जो है सभी के लिए कॉमन है। यस तो सर। यहाँ से अगर आपने डायनोमीटर लिखा है तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए एफ सी एफ टी से। यू गेट आर, एंड वंस यू गेट आर देन यू जस्ट राइट एफ एस इक्वल टू आर कॉस प्लस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, जो भी यहाँ पे फॉर्मूला फ्रॉम दिस ट्राइंगल। सिंपल सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फोर्स को रिजॉल्व करना है, करेक्ट है, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, यस सर। करेक्ट। यस सर, हो सकता है सर ये थोड़ा सा मैंने गलत किया हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ ये इस तरीके से बहुत ज्यादा हाँ। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी।
यस सर, यस है सर, ना? यस सर। करेक्ट है। हाँ, ये एफएस था, जो डिजायर्ड था उसको मैंने थोड़ा सा ऐसा बॉक्स कर दिया कि हाँ ये मतलब इन और टर्म्स। इवन क्वेश्चन में मेंशन था कि क्या मेंशन था कि आपको फोर्स लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट इक्वेशंस फॉर shear एंड फ्रिक्शनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड कटिंग प्रोसेस पैरामीटर। तो मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है आपकी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और shear स्ट्रेंथ, है ना? तो मैंने आपको बताया कि क्या लिखना है, ठीक है? इसको सुधारना है थोड़ा सा। हम्म। बाकी फॉर्मूला सही है आपके, जो भी आपने लिखा फॉर्मूला में कोई गलती नहीं है। जी हाँ, सर। इसमें एक और लास्ट में सजेशन देना चाहूंगा यस कि सर। जो भी फोर्स आप लिखे उन फोर्स को डिफाइन कर दो एक बार। बिल्कुल सर। जैसे आपने अगर लिखा है शियर फोर्स, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द शियर प्लेन, करेक्ट? यस सर। और एन क्या है? तो कैपिटल, जैसे आपने एनएस को डिफाइन किया है, एनएस, तो एनएस क्या है? दिस इज अ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू शियर प्लेन, एयरप्लेन, यस सर। है ना? तो इस तरीके से थोड़ा पता चल जाए कि ये है क्या फोर्स, ये डिफाइन कर दो, ठीक है? तो ये है सर, मैंने तो अपनी तरफ से सजेस्ट कर दिया, आप बताइए बाकी। मेरे को लगता है कि जो सर ने आपको मिस्टेक्स बताई हैं, अगर आप वो ना करो तो 2 नंबर आपके ज्यादा बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 2 नंबर का सर, आपका लॉस सर हो और रहा है एक इसमें। चीज मुझे जो मतलब ये लग रहा है कि थोड़ा अभी जैसे हम लोग इससे पहले एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स में थे, अभी जब इस चीज पे आ रहा है ना ये ट्रांजिशन, इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम से थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ ना मतलब लिखने में। तो टाइम कितना लगाओ, टाइम लगाओ, पास होना है तो 30-40 नंबर का एडिशन लो यहाँ पे। जी सर। नहीं सर, जैसे ये और 40 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें कितना टाइम मैक्स टू मैक्स मेरे को स्पेंड करना चाहिए? आप देख देखो लो, थ्री। 300 नंबर पे 3 घंटे हैं, जी। तो उस हिसाब से लगा लो। 180 मिनट अगर 300 नंबर का है, तो 14 नंबर का कितना मिनट हुआ वो लगा लो, उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। राइट। जी सर। उतना देखो लिखो जितना बस रिक्वायर्ड है, और अच्छे तरीके से थ्री स्टेट। हंड्रेड का तो पॉसिबल ही नहीं अटेम्प्ट करना, जी सर। उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। 300 का अगर सारे आंसर दे दूं तो भी नहीं लिख पाओगे। सर तो कितना मतलब टारगेट करना चाहिए, मतलब कि एक फेयर अमाउंट होगा ये? 200 प्लस नंबर का जी। एकदम करेक्ट लिख दो और चिल हो जी। जाओ। जी। जी। 100% सिलेक्शन होगा, 200 प्लस, और एक 100% करेक्ट एक्यूरेसी, आंसर, जी सर, बिल्कुल ठीक सर। है ना? और यस। बहुत ही प्रिसाइज है ना, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं है और बहुत हम्म। कम भी नहीं लिखना है। जी मतलब सर। सारी चीजें कवर करनी है कम वर्ड्स में, मतलब एक जिससे प्रॉपर बहुत फ्लो लेंथी होना क्वेश्चन चाहिए, नहीं आप होना जैसे चाहिए। बोल रहे हैं ना, एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए, जैसे गिवन हुआ, हाँ। हुआ एम हुआ, उसके बाद लास्ट में मतलब हम्म। बॉडी के कंक्लूजन भी कि हाँ और ये आखिरी में अगर कंक्लूड कर सको तो उसको कंक्लूड भी कर दो। जी ये भी कंक्लूजन। एक अच्छा तरीका होता है, कई जी बार सर। आंसर जैसे मिलता है तो उसको कंक्लूड भी कर देना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। यस सर। ऑलवेज नेसेसरी नहीं है कि कंक्लूड किया जाए, हाँ। बट समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका कंक्लूजन लिखा जा सकता यस सर। है ना? पता नहीं, श्योर। आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो सिद्धार्थ विल डिस्कस दैट। श्योर सर, श्योर। हम्म। Okay, so I think Siddharth, थैंक यू। this is the feedback for you, and Swenjit, you can now, sir, Swenjit का शेयर करते हैं क्वेश्चन। हाँ हाँ। सर मैं रह सकता हूँ ना मीटिंग में? हाँ हाँ, you can be there. ओके। थैंक Swenjit, you can, your question can be shared now. Yes, sir. I had already forwarded to Manish, sir. वही जस्ट सर, वेट इससे 1 मिनट। एग्जिट होना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को कर पाएंगे शायद। हाँ, ये मैं अनशेयर कर देता हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ खुल क्यों मिलेगी? नहीं रहा है? अच्छा। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, पैनल पे मिल जाएगी। ओके सर। सर अभी दोबारा से मैं शेयर कर दिया हूँ मनीष सर को फिर से। नहीं नहीं, है मेरे पास, ये आ गया। सर ये नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन है सर, पहला वाला और एक फाइल में। अच्छा, ओके ओके, नो इशू।
the good thing is like you have mentioned about angles and things which you are using, Yes, sir. like rake angle, alpha, thickness angle, वो आपने mention किया है साथ साथ, वो सही है. जी सर. लेकिन थोड़ा राइटिंग स्टाइल जो है ना, जैसे टू फाइंड शेयर एंगल 5 कटिंग रेशियो, ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है? इसको नीचे लिखना चाहिए था, है ना, टू फाइंड, और यहाँ पे ये फिर बड़ा इसके क्लमजी नीचे वे आओ. में लिखा है ना आपने, बहुत क्लमजी वे में. टू फाइंड अंडरलाइन कर दिया हम्म. उसको, फिर ब्रैकेट में लिख दिया. अंडरलाइनिंग ब्रैकेट इनका पर्पस होता है, ऐसे नहीं लिख सकते तुम उसको अंडरलाइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. टू फाइंड नंबर 1 शेयर एंगल 5, नंबर 2 नीचे लाइन में कटिंग रेशियो आर. तुम्हारे पास पेज की कमी नहीं है, तुम एक ही लाइन में सब कुछ मिक्स कर रहे हो, क्लमजी कर रहे हो उसको. उसके बाद मैं मीन लेंथ ऑफ अनकट शिप थिकनेस एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई इंटू मीन रेडियस. वो तुम बहुत ज्यादा उसको जो है ना क्लमजी बना रहे हो. तुम्हारा जो वो देखने का वो जो वो है, बहुत अच्छा नहीं आएगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं आएगा क्वेश्चन का. स्टेप में अभी लिखो, ये देखो. स्टेप बाय स्टेप, हाँ, और है आर ना. इज इक्वल टू मीन लेंथ ऑफ कट चिपनेस, मीन लेंथ ऑफ अनकट चिप. अभी उसमें ध्यान से देखना, आर तुमने न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? जी सर. आर को तुमने मीन लेंथ ऑफ कट चिप थिक चिप लिखा हुआ है, और जो लाइन लगी है वो काफी नीचे लगी है. छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीके से इंप्रेशन डालती हैं. और तुम जो कट कर रहे हो ना, मिलीमीटर को मिलीमीटर से कट कर रहे हो तुम. 0.32 किस चीज का है? 73 ये कट क्यों किया हो तुम मिलीमीटर को? सर वो यूनिट यूनिट लेस होता है ना, तो इसीलिए मैंने एमएम रखा, एमएम बाय एमएम आ रहा था तो ऐसे तो कभी आंसर नहीं को. करते, मिलीमीटर को मिलीमीटर से कट तो कभी नहीं करते. तो अंडरस्टूड है कि वो आ जाएगा तुम्हारे पास उतना वैल्यू. यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा इसकी जी सर. रिक्वायरमेंट नहीं थी. और ये क्या 74 पाई लिखा है, क्या लिखा है आगे? जी सर, पाई पाई 74 सर. पाई. 74 पाई लिखा हुआ है. उसको ढंग से लिखना है, और उसको मिलीमीटर मिलीमीटर कट नहीं करते हैं. मेरे को नहीं लगता इसकी रिक्वायरमेंट थी. यू कुड हैव डन दैट, और थोड़ा सा साफ करके लिखना बिल्कुल अच्छे तरीके से, राइट? जी सर. कभी फॉर्मूला लिखो तो चाहे उसको रेक्टेंगल के अंदर डाल सकते हो तुम, कोई ट्रबल नहीं है ओके उसमें. सर. वी नो दैट tan फाई, वी नो दैट दिस फाई फाई तुमने डिफाइन किया ऊपर, राइट? जी सर, ऊपर हाँ डिफाइन सर. करें. हाँ, तो कर सकते हो उसको, ठीक है वो सारा. तो अगर नीचे भी कहीं फॉर्मूला के साथ डिफाइन ना, वेयर फाई इज दिस अल्फा इज दिस, तो ब्रैकेट में आगे फॉर्मूला के आगे वेयर अल्फा इज दिस फाई इज दिस, तो उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेकर के ऊपर. मतलब सर दोबारा फिर से जहां मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो फिर बगल में लिख लूंगा. एक आधा बार यहीं लिखा पे जा सकता डिफाइन है, कर कोई दो, ट्रबल. इस जोन में, हाँ, इस जोन वेयर पे, यहाँ फाई पे इज लिख दिस दो, अल्फा इज दिस, यहाँ हाँ पे. यहाँ पे लिख सकते हो. ओके सर. हम्म. करली ब्रैकेट लगा के, करली ब्रैकेट, और वेयर दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ऐसे लिख दो. हम्म. जी सर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पार्ट. तो वही सेम आपने भी फोर्स वैसे ही रिप्रेजेंट किए हैं, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया मर्चेंट सर्कल को. एंड व्हाट अबाउट अजम्पशंस, एंड में लिखा है क्या? जी सर, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में अजम्पशंस पूछा था, तो इसीलिए मैंने भी आंसर के ओके, लास्ट में अजम्पशंस लिखा है. ठीक है, तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है. तो यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा ना डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है कि कटिंग फोर्स, शियर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टूल चिप, और ये वर्क पीस कहाँ पे, वो सारी चीजें डिफाइन करो. यहाँ पहले फिगर ड्रॉ करो, वहां पे सारी चीजें डिफाइन करो, देन ड्रॉ करो मोर सर्कल, सॉरी मर्चेंट सर्कल. सर. एंड मेरे को लगता है करेक्ट. कि आप ना एक दो लाइन पहले आपको लिखनी चाहिए, मर्चेंट फोर्स सर्कल जो तुमने लिखा है इन ऑर्थोगोनल कटिंग, या जो तुमने जी लिखा सर. उसके नीचे एक लाइन लिखनी चाहिए कि मर्चेंट फोर्स सर्कल किस लिए यूज किया जाता है. दो तीन लाइन उसके बारे में लिखोगे, उसके बाद डायग्राम आएगा, उसके बाद आपके सारी टर्मिनोलॉजीज आएगी, और उस तरीके से आप फिर उसको डिफाइन करोगे. तो दो तीन लाइन से स्टार्ट कर सकते हो आप पहले. ओके सर, मतलब सर जहाँ डायग्राम बेस्ड है तो एक दो लाइन उसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा देंगे. अब मर्चेंट फोर्स सर्कल होता किस लिए, मतलब उसके बारे में कुछ तो लिख सकते हो ना. मर्चेंट फोर्स सर्कल हाँ हाँ. in orthogonal cutting is used to calculate these kind of forces. There are different forces and different angles as explained below in the diagram. ओके सर. Something like that. हर जी डायग्राम का सिग्निफिकेंस होता है ना, और प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन होता है. तो जी पहले हमें सर. डिफाइन करना पड़ता है कि हम करने क्या जा रहे हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद हम फिगर को ड्रॉ करते हैं. जैसे बुक्स में आप पढ़े होंगे ना कि कोई फिगर रहता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है प्रॉपरली. ऐसा नहीं है कि कुछ भी फिगर बना दिया और उसके बारे में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया. एज शोन इन फिगर, कहीं ना कुछ लिखा होगा, जी सर. है ना. तो जी फिगर को सर. प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ता है पहले.
अब ये जैसे ये फिगर ड्रॉ कर रहे थे ना, इसको ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था, क्योंकि इससे ही तो ये बना है। जी सर, जी सर। पहले हमें ये पता चला कि फोर्सेस कहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। ओके सर। मटेरियल करेक्ट है। जी सर। और यहाँ पे आपको रेफरेंस भी डिफाइन करना पड़ेगा, आपने भी डिफाइन नहीं किया रेफरेंस सर्कल ड्रॉ करने से पहले। अगर तुम्हें पता है कि तुम रबिंग कर सकते हो तो पेन लेना, सो दैट रबिंग कर सको बाद में, पेंसिल से करना। तो देखो कितना रबिंग किया है तुमने उस डायग्राम पे। जी हम्म। सर, उसको ट्रायंगल ड्रॉ कर हाँ, अगर तुम्हें समझ गया। लगता ओके है कि सर। तुमसे डायग्राम नहीं बनेगा, तो क्या करना कि तुम वो करना, पहले अगर ट्राई करना चाहते हो तो रफ पेज होता है एंड में, तो रफ पेज पे ट्राई कर सकते हो कि अगर तुम्हें हिट नहीं कर रहा है कैसे करना है। सो रबिंग लास्ट, रबिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके सर। और कोशिश करो स्केल रखो, स्केल को यूज करो। ठीक ठीक है है। सर, अगली बार से स्केल पेंसिल यूज करके डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। हम्म। इसमें आपने क्या चीज डिफाइन किया, टी डिफाइन वगैरह करने के लिए डिफाइन क्या किया लाता आपने? है? अच्छा। हैव यू डिफाइन टर्म टी? टी, यस हाँ, सर। थिकनेस ऑफ अनकट थिकनेस, दैट इज ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन में पूछा था, जी सर। शियर एंगल डिफाइन करने को कहा था क्या? जी सर, उसने मटेरियल प्रॉपर्टीज पूछा था। स्पेशली स्पेसिफिकली शेयर एंगल तो बोला नहीं था सर, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टीज पूछा था तो इसलिए मैंने शेयर एंगल डिफाइन कर तो लिया। देखो, मर्चेंट सर्कल पूछा गया था, तो मर्चेंट सर्कल में tan फाइव का यहाँ पे नहीं है कुछ रोल, है ना, इसका डेरिवेशन स्पेशली। मर्चेंट एक फोर्स सर्कल डायग्राम है जहाँ आप फोर्स को डिफाइन करते हो, जी सर। तो इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। ओके सर। हम्म। ठीक है, पर आपने रिजल्टेंट फोर्स लिख दिया, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि एफ सी एंड एफ टी बोथ आर डिटरमिन्ड बाय यूजिंग डायनोमीटर, एंड आफ्टर गेटिंग दिस डेटा फर्स्ट वी राइट resultant force and their position, correct? And once we get resultant and their position, then we draw FC and FT, और उसके बाद आपको फिर एंटायर मर्चेंट सर्कल डायग्राम मिलेगा, एंड आफ्टर दैट डिफाइन ईच एंड एवरी फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, करेक्ट? यस सर, सो पहले लिखना पड़ा सर, एफ सी एंड एफ टी डिटरमाइंड बाय यूजिंग डायनामोमीटर एंड देन देखो, द ये मर्चेंट सर्कल। मर्चेंट सर्कल दो तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। एक आपका फोर्स डायनोमीटर से मेजर करके आपको दे दिया जाए कि एफ सी और एफ टी ये, और बोला जाए कि मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करो, तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आपके पास शियर स्ट्रेंथ दे दी जाए, मटेरियल प्रॉपर्टी दे दी जाए, टूल ज्योमेट्री दे दी जाए, तो वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि एक बार रिजल्टेंट पता करना नेसेसरी है, एंड वंस यू गेट रिजल्टेंट फोर्स देन आप मर्चेंट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, करेक्ट है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का जो दोनों एंड होता है वो डायमीटर होता है मर्चेंट सर्कल का, तो जी सेंटर सर। उसका रेडियस होगा, और जो रेडियस और सेंटर पता चलेगा तभी तो आप सर्कल ड्रॉ करोगे, जी सर। ठीक है। तो यस सर। तो आप जिससे भी स्टार्ट करोगे तो पहले उसके बारे में लिखोगे कि आपने ये रेफरेंस लिया और यहाँ से हमने इसके बारे में लिखा, ओके सर। क्योंकि देखो स्पेशली मेटल कटिंग में हमने यहाँ पे दिया क्वेश्चन, और मेटल कटिंग मतलब सबसे कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है पूरे इंजीनियरिंग का, देखा जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जी सर। जी और सर। बहुत सारी थियरीज हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग थियरीज लिखी रहती है, तो राइट यहाँ पे सर। आपको हर चीज डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका रेफरेंस क्या है, फिर आंसर लिखना, जी सर। ठीक है ना। जी सर। फिर आपने अजम्पशंस लिखे हैं, तो यहाँ पे 7-8 अजम्पशंस लिख दिए हैं, ठीक है। अगेन, अब ये assumptions नहीं होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है, चिप फॉर्मेशन इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म विदाउट बिल्ट-अप एज, थिकनेस ऑफ कट चिप थिकनेस इज कांस्टेंट। थोड़ा सा ये assumptions वाला पार्ट आप लोग पढ़ो एक बार, ठीक है ना। टूल ज्योमेट्री शुड ओके सर। रिमेन कांस्टेंट। ये मतलब मे बी इट इज नॉट अ राइट वे यू आर राइटिंग assumptions। आप सिंप्लीफाइड करके लिख रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं होता, assumptions पर्टिकुलर वे में लिखनी पड़ेंगी आपको, और अगर उसको गलत सर, लेंगे तो काट देगा वो। सर ये मनीष सर ने जो पढ़ाया था तो उस पे ये अजम्पशंस था, तो ऐसा ही था हूबहू, तो इसीलिए मैं पढ़ के उसको लिख लिया। अच्छा, आप हम्म। उसमें देखना, मेरा जो नोट्स है उसमें तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था, आप मेरा नोट्स पढ़ना जो मैंने शेयर किया है, उसमें एग्जैक्ट assumptions लिखे हैं जो बुक में लिखे हैं, जी सर, जी सर, मैं ठीक है ना। दोबारा पढ़ लूंगा उसको। तो जी वही सर। तो एग्जैक्टली फॉलो अंडरस्टैंडिंग करना करना है। अलग है, लेकिन जब लिखते हो ना तो अलग चीज आता है। एक्सप्लेन ओके करते सर। टाइम जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो बड़े सिंपली वे में आपको समझा देते हैं चीजें, कि इसका मतलब ये है, लेकिन वो जब लिखोगे ना तो वैसे ही होना चाहिए जैसे बुकिश नॉलेज में आपका होना चाहिए assumptions।
जी सर, मैं सर का नोट्स एक बार पढ़ के फिर से इसको नोट्स पढ़ लिखूंगा। लेना, उसमें मैंने लिखा है प्रॉपरली, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो सर ये हो गया, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, तो इसको अभी बाद में चेक करेंगे। हाँ, आई थिंक विल डू दैट लेटर ऑन, सो वी कैन एग्जिट इसके फ्रॉम दिस। इसके आंसर आ जाएं एक बार, तो फिर हम एक साथ चेक करेंगे फिर। यस। ऑल्दो मैंने आंसर चेक कर लिया है, ऐसा नहीं है, बट नेक्स्ट हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, कुछ और हमारे पास सभी का आंसर आ जाए, फिर एक साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। रंजित, सर काफी आउट ऑफ इंप्रूव करना है, 14। हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है तुम्हें। क्रिस क्रॉस जी रबिंग इंप्रूव, रबिंग बहुत कर रहे हो, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तुम्हारी। और तुम जो स्पेस है उसको यूटिलाइज ढंग से नहीं कर रहे हो, पेपर मैनेज नहीं कर रहे हो ढंग से। और लाइन वाला पेज यूज करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां पे लाइन वाला पेज मिलेगा, जैसे पुराना वो सिद्धार्थ ने बना रखा था। सिद्धार्थ ने जैसे लाइन वाला यूज किया, उस पे भी लिखने का एक तरीका होता है जिसकी प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए। लाइन वाले पे प्रैक्टिस है तो इस वाले पे तुम कर ही लोगे। तो ये व्हाइट पेपर यूज मत करो, लाइन वाला पेपर यूज करो, राइट। जी सर। हम्म। और दोनों साइड मार्जिन जरूर छोड़ना ना जब आंसर लिखना। ओके ओके, सर। पहले से। सो अभी संजीत आपको इम्प्रूव करना है काफी, हाँ। 3-4 नंबर कटेंगे इसमें आपके। ओके सर। ओके, सो दैट्स इट, मनीष सर, वी कैन एग्जिट आउट ऑफ इट नाउ। यस सर। थैंक यू सर। ओके। ओके ओके। सिद्धार्थ, सो यस सर। वी हैव गिवन फीडबैक टू यू बोथ। और यस जैसे सर। आपका किस सेशन है, वैसे बाकी बच्चों के साथ भी सेशन होगा। तो श्योर सर। मनीष सर, कैन वी कम आउट ऑफ इट? यस सर। सो वैसे ही बाकी बच्चों के साथ सेशन होगा, तो उसमें भी तुम देखना हाउ व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स सजेस्टेड टू देम, एंड डू इट प्रॉपर्ली। प्रैक्टिस यस सर। करते रहो, लिखने का प्रैक्टिस करो। अगर आपको एग्जाम ये निकालना है फाइनली, यस तो सर। लिखने का प्रैक्टिस साथ साथ करो, सर राइट। डेली कितने क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करने चाहिए, मतलब ऑन एवरेज, मतलब राइटिंग मेरे प्रैक्टिस? को लगता है यार, अगर टाइम है तो डेली एक तो लिख ही लिया करो। जी। एटलीस्ट वन यू शुड राइट, पर अच्छे तरीके से, हाँ। यस सर। ओके। ओके मनीष सर, ओके। थैंक यू। थैंक यू ओके। सर, थैंक यू ओके। सर।